الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انزل علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی۔ بھائیو اور بہنوں، ابتدا میں کلام پاک میں سے میں نے علم کے تعلق سے، گیان کے تعلق سے، شکشا کے تعلق سے کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ علم، گیان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے انسانوں کے لیے خاص اہمیت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن نامی، یہ دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا آخری نصیحت نامہ ہے۔ اس دنیا کے خاتمے تک اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی اور کوئی سندیشہ اور نبی رسول بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے سب لوگوں نے جاننا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، اس میں کیا تعلیم ہے۔ جب تک ہم خود نہ پڑھیں ہمیں معلوم کرنا مشکل پڑتا ہے۔ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یہ آیت اس طرح ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، چیزوں کو بنایا۔ بنانے والا، اتپتی کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ الخالق ہے۔ خالق نام کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ 2 4 10 20 اور 100 200 کروڑ چیزوں کو جس نے بنا دیا ہو اور پھر بس۔ خالق اس اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی، جو دکھائی دیتی ہیں اس کی بھی، اور جو پہلے انسانوں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور اب دکھنے لگی ہیں ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی۔ اور آج کے دور میں بھی جو چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں، ابھی ہماری نگاہ میں، درشٹی میں نہیں آ سکی ہے، ان کے وجود کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن علم کی روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی، اس لیے ہر سال نئی چیزوں کی تلاش انسان کرتے جا رہا ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان کا بھی، جو نہیں معلوم ہے ان سب کا بھی خالق اللہ ہے۔ اس نے اپنی کتاب جب نازل کی تو پہلی بات پڑھنے کی کہی کہ پڑھو۔ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور علم کے حصول کا ذریعہ ہے وہ۔ اس لیے پہلی بات قرآن مجید میں انسانوں کے نام جو ترسیل فرمائی گئی اس میں یہ حکم دیا گیا: خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے لہو کی پھٹکی سے، بیری بندو سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھائی شروع کرو، پڑھنے کی طرف توجہ دو، پڑھو۔ جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سلطان کائنات نے جو چیزیں بنائی، بڑے بڑے سمندر اور ان کی موجیں، اور ان سمندروں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں، انسانوں کی غذا کا سامان بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ تستخرجون منہ لحما طریا، کہ کتنی قسم کی مچھلیاں
झींगे और क्या क्या चीज़ें जो खाने की जायज़ है उसको आदमी निकाल निकाल के उसमें खाता है। तो इनका खालिक कौन है? कौन है इनका खालिक? दो नहीं हो सकते, दो से अधिक भी नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। मानव बुद्धि, इंसानी अक्ल भी यही तस्लीम करती है और करेगी। हम इल्म और तरबियत की अहमियत पर आपसे खिताब करने जा रहे हैं। उसमें ये कहना चाहेंगे कि पढ़ना जारी रखो। आज के दौर में पढ़ने के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कंप्यूटर के आने पर अब पढ़ाई लिखाई के लिए एक नया दौर हमारे सामने शुरू हुआ और नए दौर में हम दाखिल हुए हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, लेकिन कलम वजूद में आ गया और कलम जब वजूद में आया तो इंसानों के लिए अल्लाह की बड़ी रहमत का तोहफा था। यही वजह है कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। अब सब सूरतों के नाम, उनके मज़ामीन और उसकी इब्तिदा के एतबार से अल्लाह ताला ने बयान फरमाए और हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सूरतों के नाम रखे कि वो दूसरी सूरतों के मुकाबले में इम्तियाज से पहचान लिया जाए। उसमें एक सूरत है जिसका नाम है अल कलम। जिसके हाथ में कलम हो वो अगर झूठ लिखने लगे और उसकी ज़बान फिर झूठ बोलने लगे तो दुनिया का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए पैगंबर से फरमाया कि पढ़ाई करो, पढ़ो। जिसे पढ़ना ना आता हो, लिखनी ना आती हो, हरूफ ना आता हो, संकेत और अक्षर ना आते हो, उच्चारण ना आता हो, तलफ़ुज़ ना आता हो, वो भी पढ़ सकता है। वो इस कायनात को, वजूद में आई हुई इस कायनात को पढ़ सकता है। जिस धरती पर उसके पांव टिके हुए हैं और उसका बसेरा है, उसको पढ़ सकता है कि है क्या ही। इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को दो आंखें दी। फरमाया अलम नजल लहू ऐनैन, कि मैंने तुझे दो आंखें नहीं दी जिससे तू चीजों को देख सकता है। आंखें खोल और देख, ये कायनात क्या है, ये जमीन क्या है, ये आसमान क्या है, ये करोड़ों अरबों खरबों मिलियन अरब से भी ज्यादा सितारे और सैयारे तेरे सर पर अधर लटक रहे हैं और गर्दिश कर रहे हैं। बास की रोशनी अब तक तुझ तक पहुंची नहीं है। तो आज से 500 वर्ष पहले उन मेंशन ऑफ स्टार में से बास चीजों को नहीं जानता था। आज दूरबीन की मदद से तू और जानने लग गया। तो भाइयों, इल्म ऐसी चीज का नाम है कि अल्लमल इंसान मालम यालम। अल्लाह ने इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो जानता नहीं था। तो ये समझना चाहिए कि जो हम नहीं जानते हैं उसको जान लेने का नाम इल्म है। इल्म की परिभाषा और उसकी व्याख्या बहुत आसानी से इसको मान लेना चाहिए। जो हम नहीं जानते हैं उसको जान लेना। जैसे धरती है, बहुत ही करार से है। हमारी बिल्डिंगें और सूबे और टाके और समंदर और जहाज और हमारे मकानात और सब कुछ धरती के ऊपर है और धरती करार में दिख रही, कभी कभी हिलती है, जलजले आते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था तो लोगों ने धरती खेकड़े की पीठ पर है, खेकड़ा ऐसे ऐसे करता है तो धरती कंप होता है। कुछ दिन चली बात उनकी, लेकिन इल्म ने उसको रद्द कर दिया, ज्ञान ने उसको रद्द कर दिया, कलम ने धिक्कार किया उसका कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आदमी खोज में पड़ा कि भाई फिर धरती काय पर है। कुरान जब उतरा तो उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। ये धरती नहीं, जमीन और आसमान और तारे और जो कुछ हैं सब के सब घूम रहे हैं, गर्दिश में है। इंसान इस दौर में इल्म की रोशनी में जब आया और खोज की तो इस नतीजे के ऊपर पहुंच गया कि धरती घूमती है, दो तरह से घूमती है। एक तो अपने महवर पर घूमती है और एक अपने मदार पर घूमती है। जैसे बच्चे भंवरा खेलते हैं ना, और रस्सी लगा के और भंवरा घूमता है, तो भंवरा दो तरह से घूमता है। एक तो अपनी आरू के
धुरी पर घूमता है और दूसरे मदार में घूमता है, ऐसा दो तरह। इस तरह धरती जो है वो घूमती है। अभी आप अपने इस भाई की तकरीर टेलीविजन पर सुनेंगे, इतनी देर में तो ये बेशुमार मील के चक्कर लगा चुकी होगी। तो ये इल्म जो है अब हमारे सामने आया, अभी भी ये इल्म पूरा नहीं हुआ। इल्म की कोई सरहद नहीं है। जिसने कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हो गया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं और मुझ पर सारा इल्म खत्म हो गया, उसी दिन से उसका गिरना शुरू हुआ, और गिरने की कोई सरहद नहीं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कभी ये दावा नहीं करते कि हम सब कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानने के बाद में भी मालिक के सामने वही कहेंगे, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, हमें क्या मालूम है जो आपने सिखाया, बस उतना हम जान सके। हम ये कहने जा रहे थे कि इंसान को अल्लाह ताला ने आंख दी है, और आंख देखती है लेकिन उसके साथ बसीरत भी है। देखने के बाद चीज को भी पहचानने की कोशिश करती है कि चीज क्या है। जानवर कुछ चीजों को पहचान लेता है लेकिन बहुत सी चीजों को नहीं पहचानता, इसलिए कि उसके साथ उसको कल्ब की बुद्धि नहीं दी है अल्लाह ने। इसलिए इंसान का जो दिल है उसके बारे में कुरान ने बड़ी बहस की और बहुत ज्यादा उस पर रोशनी डाली। मैं एक बात यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, मजमून से उसकी मुनासिबत भी है कि कुरान जब उतरा तो किसी स्लेट प्लेट या किसी शीला या किसी तख्ती या किसी कागज पर नहीं उतरा। वो उतरा आसमान से वाणी की शक्ल में, संकेत और अक्षर की शक्ल में, शब्दों की शक्ल में और भाषा की शक्ल में। उतरा कहाँ? वो किसी पहाड़ पर भी नहीं उतरा, वो इंसान के दिल के ऊपर उतरा। फरमाया इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से तंजील है, ऊपर से नीचे आया है। नीचे किस जगह आया? अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके दिल पर इसको उतारा है। मालूम हुआ इंसान का दिल बहुत बड़ी चीज है। आलिमों का दिल बहक जाए, ज्ञानियों का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए और अपने मालिक को भूल जाएं और फिर वो इल्म की खोज में लगें, तो सही इल्म उनके हाथ में नहीं आ सकता। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीसों में आता है कि अपनी दुआ में ये फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नाफे हो, मेरे लिए भी फायदेमंद हो और संसार के लोगों के लिए भी फायदेमंद। कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ाई और इल्म जारी रखोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। एक हदीस आती है कि तलबल इल्म फरीदा, इल्म का तलब करना, हासिल करना, ज्ञान का हासिल करना फर्ज है। कुल्लु मुस्लिम मुस्लिमा, हर मुस्लिम पर और मुस्लिमा पर, मर्द औरत दोनों पर। इल्म के बगैर कायनात को जानने में दुश्वारी और दिक्कत होगी। अब ये इल्म ऐसा है जो अल्लाह ने अपने नबियों को दिया, इल्म मिन लदुन्ना, हमारी तरफ से खास इल्म। बाज़ उलूम ऐसे होते हैं कि खास खास लोगों के दिमाग में ही आते हैं, बाज़ उलूम ऐसे होते हैं जो उर्फ़ आम में आम तौर पर लोग उसको जानते हैं। ये कहना चाहेंगे हम कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, और अल्लज़ी अल्लम बिल कलम है, अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को उसने कलम से तालीम दी और इंसान को वो सिखाया जो जानता नहीं था। आज कलम के और भी बहुत से ऐसे रूप बन गए हैं जो अपनी बुनियाद के एतबार से कलम ही हैं। जो काम कलम कर रहा है, आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो वो भी काम वही हो रहा है जो कलम करता है। मैं तो सर्वसाधारण के लिए, आम बहनों और भाइयों के लिए कहता हूँ कि कुंतो कंजम मख्फियन फ़अरदत अन औरफा, मैं मख्फी खजाना था, मेरे सिवा मुझे कोई जानता ही नहीं। लेकिन जब मेरा इरादा हुआ कि मुझे जाने कोई, तो मैंने इरादा किया कि मखलूक बनाऊंगा। अब मखलूक बनाई, क्या क्या चीज़ें उसने बनाई। उसमें इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए उसने बनाया। वो मकसद ये है, इल्ला लियाबुदून, मेरी बंदगी करें। आपको और हमको रुए ज़मीन पर नपी तुली और खिंची तनी कसी हुई मुद्दत के लिए यहाँ जो भेजा है उसने, उसके भेजने का मकसद बंदगी है कि वो मेरी बंदगी करें पूरी आज़ादी के साथ। और न भी करें तो उनकी मर्जी की बात है, सज़ा भुगतना है उनको मौत के बाद में। करेंगे सज़ा और नजात पाएंगे, न करेंगे तो नरक में या दोज़ख में जाएंगे। तो हम इस दौर के लिए ये पैगाम दे रहे थे कुरान की रोशनी में कि इल्म को सीखने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और इल्म सीखना अब अल्हम्दुलिल्लाह
اس دور کے اندر بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے جتنا مشکل تھا، کاغذ مشکل تھا، پرنٹنگ مشکل تھی، نزول قرآن کے بعد میں صدیوں تک ایمان والوں نے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا، کئی کئی برس لگتے تھے۔ چھاپا خانہ جب آیا تو اس کا استعمال ہوا، اب کمپیوٹر آیا تو معلوم ہوا ایک چیز پہلے مشکل تھی آسان ہو گئی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بمبئی سے کلکتہ سفر کرنے کے لیے کئی دن کئی راتیں آدمی کو لگتی تھی، اب 2 گھنٹے کی فلائٹ کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سفر میں جو اس کو جیسی آسانی ہوئی، جس کا ذکر بھی ایک سورہ قریش میں قرآن نے کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، تیری صبح اور شام کی منزلیں سفر کی جو ہے اللہ نے اس کو آسان کر دی۔ یعنی مہینوں کی منزلیں جو ہے، ہفتوں کی منزلیں جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر تو نے پوری کر لی۔ اسی طرح علم کی منزلیں بھی اس دور کے اندر بہت تیزی سے انسان پوری کرتا چلا جائے۔ اب اس میں اس کو تربیت کی ضرورت ہے، شکشا کے ساتھ اس کو دکشا کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ میں تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اور تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے علم کو وہ صحیح رخ کے اوپر ڈالتی ہے۔ آدمی بہت بڑا عالم ہو گیا اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، اور تربیت کا تعلق ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت سے ہوتا ہے، دوسرے اپنے دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی ہو جائے بات بگڑ جاتی ہے، بہت دکھی ہوتا ہے انسان، لیکن اس سے زیادہ دکھ اور بگاڑ کی بات ہے کہ سینوں میں جو دل دھڑک رہا ہے اگر وہ اندھا ہو گیا تو انسانیت کی بات بگڑ جائے گی۔ اس لیے پیغمبروں نے دلوں کی اصلاح کی۔ سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تعلیم کتاب کی فرمائی اور ساتھ میں حکمت اور دانش مندی سے اپنے زمانے کے لوگوں کی تربیت بھی کی اور ان کو شکشا کے ساتھ دکشا بھی دی۔ اس پر میں ایک بات لطیفے کی سناتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم خوب ہو گئی لیکن تربیت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں نا یوروپ کی تعلیم کتنی ہو گئی، لیکن تعلیم ادھر ہوئی، ادھر پائجامہ بھی اتار دیا، یوروپ کے لوگوں نے لباس بھی اتار دیا، عورتوں کو بھی آدھی ننگی اوستھا میں کر دیا انہوں نے، اور کیسے کیسے گناہ میں، شراب کی لتوں میں اور ایسی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس تعلیم کے ساتھ میں تربیت کا اثر نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، جس کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونے زندگی ہے۔ اس پر ایک خاکہ سناتے ہیں، ایک اسکیچ جس کو کہنا چاہیے، بودھ کے لیے کوئی چھوٹی سی کہانی۔ پچھلے زمانے میں بادشاہ جب لڑائی بھڑائی سے فرصت پا لیتے تھے کہ اب کوئی کام نہیں ہے تو پھر دربار میں عالموں کو بلاتے تھے، گیانیوں کو بلاتے تھے، پنڈتوں کو بلاتے تھے، پادریوں کو، سادھوؤں کو، سنیاسیوں کو، اور کوئی مسئلہ چھیڑتے اور اس پر بحث کرتے، جی بہلانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے کہ بھائی سمے پسار کرو۔ جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں نا کہ مونگ پھلی بھی آپ کے یہاں بمبئی میں کہتے ہیں ٹائم پاس ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی دیر مونگ پھلی کھاؤ تو اتنا ٹائم تمہارا پاس ہو جائے گا۔ یہ مقصد نہیں، ٹائم کی قیمت ہے۔ ٹائم کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے بھائیوں اور بہنوں کہ بادشاہ نے بڑے لوگوں کو بلایا، ایک سوال پوچھتے تھے، جواب دیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے، پھر بادشاہ کہتا نہیں یہ غلط بات ہے، میری صحیح ہے، عالم کہتا تھا میری صحیح ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک سوال کیا عالموں سے کہ تعلیم سے انسان کے دل پر قابو ہو جاتا ہے، اور اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں مہاراج، تعلیم سے انسان کا دل بدل ہی جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک اپنے من کے اوپر قابو کرنے کی تربیت نہ دی جائے، وہ اپنے دل کے اوپر اس کا قبضہ نہ ہو جائے، تب تک وہ پریپکو نہیں ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل بتائیں گے۔ اس کے بعد ایک بلی تھی، اس بلی کو تعلیم کے ذریعے سدھا لیا، جیسے آج ہم کتوں کو سدھا لیتے ہیں، پولیس کے لوگ جو ہیں کتوں کی تربیت کر لیتے ہیں ملزموں کو پکڑنے کے لیے، سدھا لیا اس کو، تعلیم لے لیا۔ یوروپ کے اندر بندروں وغیرہ کو بھی تعلیم دے کے کچھ کام کا ان کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن من کو قابو میں رکھنا یہ دھرم کی پریبھاشا میں بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دھرم جو ہے وہ روڑھی بن گیا، اس نے انسان کے
मन की पकड़ का काम कर सके ऐसा वातावरण हमने उसको दिया नहीं। तो उसने जो बिल्ली रखी, वो बिल्ली की खूबी ये थी कि सर पर चिराग है उसके, चिराग जल रहा है और बादशाह की महफिल चालू है और बराबर अपने दोनों हाथ पसारे हुए खड़ी है, न हिल रही है न जुल रही है घंटों। बादशाह ने कहा मौलाना देखिए इस बिल्ली की मैंने तालीम की है, इसका दिल काबू में हट नहीं रही। अब मौलाना भी बेचारे क्या करते, उसको समझाते तो शायद खाल खींच के भूस भरवा देता उसको या दरबार से निकाल देता। मौलाना कहा अच्छा ठीक है, हम भी कल बताएंगे। दूसरे दिन मौलाना ने सोचा कि कितना भी कुरान हदीस बताएंगे मानेगा नहीं ये। सत्ता बुढ़े शहाणपण चालत नहीं कहते हैं ना मराठी में, कि ताकत के सामने अक्ल और बुद्धि काम नहीं देती। लेकिन आदमी होशियार था और आदमी को होशियार होना ही चाहिए। इसलिए हदीस में फरमाया इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की होशियारी से चौकस रहो कि अल्लाह के नूर से, उसके प्रकाश से देखता है। बड़ी मुश्किल से गलती करेगा ईमान वाला, उसकी निगाह अपने मालिक की तरफ होती है। उसने सोचा क्या करें, उन्होंने अपनी शेरवानी में एक चूहा रख लिया। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ, वो पिन विन लगा दिए उसको। दरबार में गए, बादशाह ने बराबर बिल्ली सिधा के रखी थी, बिल्ली पे चिराग जल रहा है। बिल्ली उनका देखो मौलाना खड़ी हुई है, बैठ बिल्कुल अपने पांव पसार करके इत्मीनान से बैठी, आधी खड़ी भी है आधी बैठी भी है। सामने के पंजे देखो, पीछे उसकी सीट देख। मौलाना ने कोई जवाब नहीं दिया, धीरे से अपने शेरवानी में से चूहा निकाला और चूहे को छोड़ दिया। जैसी चूहे का छोड़ना था, वो बिल्ली ने कहा बादशाह की ऐसी तैसी, चिराग की ऐसी तैसी, तालीम की भी ऐसी तैसी, छोड़ छाड़ के जो लपकी है चूहे की तरफ कि वो चिराग भी गिर गया, कालीन में आग लग गई, दरबारी भी भाग गए, बादशाह भी घबरा गया। वो आलिम ने बड़ी हिकमत से उस मसले को देखी। उन्होंने कहा नहीं, तालीम दे दी है आपने, इसका मन काबू में नहीं। इसलिए अब इस प्रवचन को कहिए, इस तकरीर को कहिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपसे बातचीत की है। मैं कहता हूँ इल्म की तरफ तवज्जो कीजिए और अपने दिल का मुहासबा कीजिए। कुरान मजीद की एक थोड़ी सी सूरत सुनाता हूँ, वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रना। इल्म के बाद में उन लोगों के साथ आदमी ज्यादा न रहे जिसके दिल को अल्लाह ने अपने जिक्र से गाफिल पाया। हम देखें कि इसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं है, इसके दिल में अल्लाह का नाम नहीं है, जिक्र की तासीर नहीं है, इसके मन के ऊपर कोई नूरानियत नहीं है, इसकी सच्चाई का कोई असर नहीं है, ये सिर्फ चीज़ों की खोज को इल्म समझ बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको और हमको सबको इल्म के साथ सच्ची तरबियत और खुदा परस्ती की, वो अल्लाह की मोहब्बत की तालीम दे